Saurmo Sultanpur. I am here, Vikendra Kumar Dubey, just going to tell you about the topic, the sermon at Banaras. Here, dear students, this is the chapter 8 of class 10th. Now, I am going to explain here one by one in Hindi and as well as in English. So, just keep attentive what I am going to teach you. The sermon at the Banaras. Now, dear students, sometimes some great personalities deliver the speech which are beneficial for the persons. Now, here in this chapter, just there is principles delivered by Buddha. Here, before you read, what is a sermon? It is different from lecture or a talk. Can this word also be used in negative way or as a joke, as in my mother sermon about getting my work done on time? Here this is a question related this topic, the sermon at Banaras. And here the next question, find out the meaning of the words and the phrases given in the box. Here all the words, when you read the text one by one, so you will get the words and you are just going to understand what the meaning is of given words. Here, have you heard of the Sermon on the Mount? Who delivered it? Who do you think delivered a sermon at Banaras? What the topic is mentioned here, just given these questions, you all have to going to get find just after reading the text one by one. Here, just I am going to tell you about the Gautam Buddha. Gautam Buddha here before the birth of Christ, it means 563 BC to 483 before the Christ, and began life as a prince named Siddhartha Gautam in northern India. इनका जन्म नॉर्दर्न इंडिया के हियर उनका जीवन यहाँ से उत्तरी भारत में आरंभ हुआ और इन द स्टार्टिंग इन द बिगिनिंग he was as named Siddhartha Gautama. It means Gautam Buddha. At the age of 12th, he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures, and 4 years later, he returned home to marry princess. 12 वर्ष की अवस्था में इनको स्कूल भेजा गया और ऐसे स्कूल भेजा गया जहां पर रिलीजन से रिलेटेड यानी धर्म से रिलेटेड उनको एजुकेशन प्राप्त हुआ. एंड जस्ट आफ्टर कमिंग बैक ही गेट मैरिड अ प्रिंसेस, उनका विवाह कर दिया गया. एंड हियर दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बेफिटेड रॉयल्टी. बड़े ही शान शौकत के साथ वे 10 साल तक अपने पुत्र के साथ और अपने वाइफ के साथ उन्होंने अपना जीवन यापन किया. बट हियर एट अबाउट द एज ऑफ 25, द प्रिंस, जब प्रिंस की एज 25 की हुई तो हियर फोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, तो उनको दुनिया के सफरिंग से पूरी तरह से क्या कर दिया गया, कवर्ड कर दिया गया. इट मीन्स he was rarely out of such kinds of sufferings related the personalities. And here, while out hunting, chance upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. फिर होता क्या है कि एक बार वो हंटिंग के लिए एक जंगल में निकल जाते हैं. एंड ऑल ऑफ सडन व्हाट ही सा जस्ट वाज मेड चेंज his life and his mentality. Just after looking the sufferings of the world, while hunting, chance upon a sick man, and he got a chance to see the sick man and the aged man. It means बुजुर्ग व्यक्ति को, and then funeral procession, और यहाँ तक द क्रिमेशन साइट पर जब उन्होंने यानी लोगों को यानी शव को देखा तो such things change their lives, change his life. And here these sights to move him that he at once went out into the world to seek enlightenment. और फिर होता क्या है बच्चों कि वो लाइफ में दुनिया में जितनी भी सारी सफरिंग्स है
उनको जानने के लिए, लोगों की पीड़ा को जानने के लिए, लोगों की संवेदनाओं को जानने के लिए, लोगों के फीलिंग्स को जानने के लिए वो इस दुनिया में निकल पड़े। गौतम बुद्ध जी इस प्रकार की प्रॉब्लम को देख करके, कभी वो जो है शव को देख करके, कभी बुजुर्ग व्यक्ति को देख करके, कभी उनकी पीड़ा को देख करके वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं और वो पूरी तरह से माइंड मेकअप कर देते हैं टू लीव हिज होम कंप्लीटली एंड टू फाइंड आउट द रियलिटी इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में जो सच्चाई है, उस सच्चाई को जानने के लिए उस दुनिया में निकल पड़ते हैं, अपने घर को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। Here these sights so moved him, और यह दृश्य उनको इस प्रकार से झकझोर दिया कि दैट ही एट वंस, कि उन्होंने तुरंत ही वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, यानी दुनिया में निकल पड़ते हैं टू सीक एनलाइटमेंट, प्रकाश को जानने के लिए कि आखिर ये प्रकाश क्या चीज है। कंसर्निंग द सारोज, दुखों की चिंता को लेकर के ही हैड विटनेस, उसके साक्ष्य को जानने के लिए वो निकल पड़ते हैं। एंड ही वंडर्ड, और उन्होंने आश्चर्य होता है फॉर 7 years, 7 साल तक, एंड फाइनली, और अंततः सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री, और फाइनली क्या होता है कि वो पूरी तरह से चारों तरफ से घूम करके, यात्राएं करके, जब वो परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। वेयर ही वोड टू स्टे, जहां पर वो शपथ लेते हैं वहां पर ठहरने का, वहां पर रुकने का। कब तक की? अनटिल एनलाइटमेंट केम, जब तक कि उनको सच्चाई का पता नहीं चल जाता है, जब तक उनको ज्ञान का प्रकाश नहीं मिल जाता है, यानी टिल दैट मोमेंट ही डिसाइडेड टू स्टे देयर अंडर द पीपल ट्री। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर ही टेक एन ओथ टू स्टे देयर until he get the enlightenment his minds completely, and enlightened after 7 days, और 7 दिन के पश्चात, 7 दिन के पश्चात जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो ही renamed the tree the बोधि ट्री, तो उन्होंने उस पेड़ का, उस वृक्ष का नाम बोधि ट्री रख दिया, क्योंकि वहां से he get the enlightenment, he get the knowledge, and that's why the name of the tree just got after him, बोधि ट्री। And here tree of wisdom, it means बुद्धि का पेड़, यानी ज्ञान का पेड़। and began to teach, और उन्होंने उपदेश देना स्टार्ट कर दिया, सरमन देना स्टार्ट कर दिया, नॉलेज देना स्टार्ट कर दिया। and to share his new understandings, और अपनी नई समझदारी को फिर वो क्या करने लगे, एक दूसरे में शेयर करने लगे। at that point he became known as the Buddha, और उसी क्षण से उनको बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। Now dear students, here just when anyone just try to know about the from where he got the knowledge, so just under the people tree he got the knowledge just after 7 days he got the enlightenment, it means, and just after that the name of the tree is had got Bodhi tree. Okay, and here the awakened or the enlightened, it means Gyan, it means Prakash. The Buddha preached his first sermon, उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया? Here at the city of Banaras, यानी बनारस के शहर में, यानी he speeched his first, it means he gave the first speech, it means first sermon at the Banaras city, and most holy of the dipping places on the river, और ज्यादातर बनारस के जो भी घाट रहे थे उस समय तक क्या रहे थे, यानी डूबे हुए थे, यानी रिवर गंगेज की वजह से, यानी गंगा नदी की वजह से। दैट sermon has been preserved and is given here, और इसलिए ये जो उपदेश दिया गया यहाँ पर सुरक्षित रखा गया, और इस उपदेश को वहां पर दिया गया। और इस उपदेश का तात्पर्य क्या था? इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम, या बुद्धा के बुद्धि को रिफ्लेक्ट करता था, अबाउट वन इनक्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, जो उनकी पीड़ाओं को, लोगों की पीड़ाओं को यानी सांत्वना देने के लिए, उनको कंटेंटमेंट फील कराने के लिए ऐसे उपदेश जो कि गौतम बुद्ध के द्वारा दिए जाने लगे। एंड हियर just after that there was a story happened when here Kisa Gautami had an only son. Just here the story is going to be start here, the next story, and the related Kisa Gautami, there was a character here in this topic, there is a character in this topic, Kisa Gautami, named, I think you should remember this name, here had an only son,
जिसका केवल एक पुत्र था, एकमात्र पुत्र था, उसका इकलौता पुत्र था किसा गौतमी का, एंड ही डाइड, और वह क्या हो जाता है, वह मर जाता है। किसा गौतमी का एकमात्र इकलौता बेटा जो कि मर जाता है। इन हर ग्रीफ और दुख में सी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, और वो अपने पड़ोस में अपने उस मरे हुए बच्चे को लेकर के जो है घूमने लगती है। क्या करने के लिए? आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, उसको दवा देने के लिए। एंड द पीपल सेड, और लोग कहते थे कि सी हैज लॉस्ट हर सेंसेस, कि वो अपना आपा खो बैठी है। ही हैड गॉट अनकंट्रोल्ड, इट मीन्स ही लॉस्ट हिज माइंड ड्यू टू the dead sons. Here the boy is dead, क्योंकि लड़का मर गया था, उसका लड़का, किसा गौतमी का लड़का मर गया था। एंड एट लेंथ किसा गौतमी मेट अ मैन, और काफी टहलने के बाद, काफी भाग दौड़ करने के बाद किसा गौतमी मेट अ मैन, वह एक इंसान से मिलती है। हु रिप्लाइड, जिसने उत्तर दिया, टू हर रिक्वेस्ट, यानी उनके निवेदन का, उनके प्रार्थना का। आई कांट गिव द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड, मैं आपके पुत्र, मरे हुए पुत्र के लिए दवा तो नहीं दे सकता हूं, बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन, किंतु मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो ये सब कर सकता है। यानी मैं एक ऐसे डॉक्टर को जानता हूं, एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूं जो कि ऐसा कर सकता है। एंड हु कैन गिव यू द मेडिसिन फॉर योर चाइल्ड। एंड द गर्ल सेड, और उस महिला ने अर्थात किसा गौतमी ने कहा, प्रे टेल मी, मेरे लिए प्रार्थना करिए सर, श्रीमान जी, हु इज इट, ये, और प्रार्थना करके निवेदन मैं करती हूँ कि आप बताइए वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, उस इंसान ने उत्तर दिया, जवाब दिया कि गो टू साक्या मुनि द बुद्धा, यानी साक्या मुनि के पास चली जाओ, क्योंकि बुद्ध जी को उस समय साक्या मुनि के नाम से भी संबोधित करते थे। किसा गौतमी रिपेयर्ड, किसा गौतमी तैयार हो जाती टू बुद्धा के पास जाने के लिए। एंड क्राइड, यानी रोते हुए, लॉर्ड एंड मास्टर, अपने स्वामी से मिलने के लिए, मालिक से मिलने के लिए। गिव मी द मेडिसिन, ए स्वामी मुझे दवा दीजिए, दैट विल क्योर माई बॉय, ताकि मेरा लड़का ठीक हो सके। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्ध ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सी, मैं एक मुट्ठी भर सरसों के बीज को चाहता हूं, सरसों के दाने को चाहता हूं। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय, और वो उस लड़की का अर्थात उस महिला का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एंड प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, और उसका प्रबंध करने का उसने जो है वादा किया। द बुद्धा एडेड, बुद्धा आगे बोलते हैं कि द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, एंड हाउ इट मे बी पॉसिबल कि you cannot get the sufferings from anywhere, it means it not possible, it's happened naturally, it means no one can escape the death, it's a natural process. And it also wanted to know Gautam Buddha and wanted to suggest her that it not may be possible, and just if I am going to say it directly, it may be hard, and that's why he just take the example to make her suggestion here. Poor Kisa Gautami now went from house to house. बेचारी गौतमी किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, यानी घर से घर तक वो लगातार चलती रही। एंड द पीपल पिटिएड हर, लोगों ने उस पर करुणा दिखाई, दया दिखाई। एंड सेड, और कहते थे, हियर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट, ये रहे सरसों के दाने, ये रहे सरसों के दाने, यानी इसको आप ले लीजिए। बट व्हेन शी आस्क्ड, किंतु जब उसने कहा कि डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, कि क्या आपके घर में कोई मदर या कोई डॉटर या कोई ब्रदर या कोई अदर रिलेटिव्स कहीं मरा तो नहीं है आपके घर में? सच काइंड्स ऑफ कैजुअलिटीज डजंट हैपन इन योर फैमिली, तो वेयर इट इज पॉसिबल, कहां यह संभव हो सकता है कि ऐसा कोई घर जो वंचित हो इस प्रकार के सफरिंग से। So here, dear students, it's a very, very interesting topic, and I think you should get it completely. Here, Kisa Gautami became weary and hopeless. बेचारी बहुत थकी हारी, परेशान, निराश हो करके, and sat down at the wayside, यानी रास्ते में ही बैठ गई, watching the lights of the city, और सिटी के प्रकाश को यानी लाइट को देखती रही। As they flickered up and were extinguished again, जो कि बार बार वो फ्लिकरिंग कर रही थी, बुझ रही थी, जल रही थी, बुझ रही थी, जल रही थी। At the last, the darkness of the night reigned everywhere, और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। And she considered the fate of men, और उस व्यक्ति ने अब उस इंसान के भाग्य को कंसिडर्ड किया,
एंड सी कंसिडर, और वो विचार करने लग जाती है द फेट ऑफ द मैन, उस मनुष्य के भाग्य पर। यानी जिस व्यक्ति ने ये आंसर दिया था कि नहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके घर में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, क्योंकि ऐसा कोई घर हो ही नहीं सकता कि जिसके घर में इस प्रकार की कैजुअलिटी नहीं हो, जहां पर ब्रदर, जहां पर सिस्टर, जहां पर डॉटर, जहां पर मतलब इस प्रकार की कैजुअलिटी, एंड हु हैज नॉट टेक द डेथ ऑफ, it means natural process, and who can escape from the death of natural process, and it happens with everyone. Here at last the darkness of the night, and he reigned everywhere, and she considered at the faith of men that their lives flicker up and are extinguished again, and she thought to herself, और वो अपने आप में विचार करने लग जाती है, how selfish am I in my grief, मैं अपने दुख को लेकर के कितनी चिंतित हूँ, मैं अपने दुख, सिर्फ अपने ही दुख को लेकर के कितनी सेल्फिश हूँ, कितनी स्वार्थी बन गई हूँ। यहाँ तो लोगों के पास दुखों का सैलाब है, और यहाँ मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए इतनी स्वार्थी हो गई हूँ कि जहाँ पर सिर्फ मैं अपने दुख के लिए ही जो है अपने आप को इस प्रकार से चिंतित अवस्था में डाल दी हूँ। एंड हियर all the rivers and all the oceans, just I think we can consider the death of happenings maybe happened every houses. Here death is common to all, ये मृत्यु तो सभी के लिए साधारण है, मृत्यु तो सभी के लिए आम है। Yet in this valley, और यहाँ तक कि इस प्रकार की घाटी में of desolation there is a path that leads him to immortality, जो कि यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए, यानी इस प्रकार के अमरत्व को प्रदान करते हैं। who has surrendered all selfishness, यानी जो पूरी तरह से अपने स्वार्थ को पूरी तरह से सरेंडर्ड कर जाते। इसका मतलब क्या हुआ कि मृत्यु के ये दुख से कोई बच नहीं सकता, इस प्रकार की मृत्यु के रास्ते से कोई बच नहीं सकता है। यह अमरत्व है, अर्थात यह अजर अमर है, सभी लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। एंड हियर द बुद्धा सेड, बुद्ध कहते हैं कि द लाइफ ऑफ मोर्टल्स एंड इन दिस वर्ल्ड, ये जीवन नाशवान है। एंड हियर इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन, जो कि दुखों से और परेशानियों से जकड़ा हुआ ये जीवन, ये संसार में जो दुख है, ये जो जीवन है वो पूरी तरह से ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड, वो पूरी तरह से दुख से व्याप्त है, दर्द से व्याप्त है। एंड नो वन कैन एस्केप फ्रॉम दीज थिंग्स, एंड फॉर हियर is not any means by which those that have been born can avoid dying, और यहाँ इस धरती पर जिसने जन्म लिया है कोई भी अपने आप को मृत्यु से नहीं बचा सका है। It's truth and it cannot be denied while you are going to take birth, just you all have to go there. Thanks, have nice day, and I will come in another video to complete it well. Thanks, have nice day.